Shoaib sir, can you hear us? Yes, I can hear you, Pranjal. Okay, great. Perfect. So thank you everyone for joining us today. Hope you all are feeling well and fine. जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक घड़ी बनाना सीखा था और आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज और क्रिएटिव तरीके से क्लॉक्स बना के हमें भेजी है. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर यू नो participating and engaging and showing your creativity in different ways. To start of the session, I'll hand it over to Shoaib. Over to you, Shoaib. Thank you, Pranjali. So, हमारे पास अभी तक we have received total of 30 projects out of 52. तो ये नंबर तो बढ़ गया है, लेकिन we want to make sure we get 50 out of 50. I think it's possible अगर आप लोग if you put in some time and try. और अगर projects बनते भी नहीं है, that is not a problem. We do not expect कि आप perfect projects भेजें. एक दो लाइन का कोड भी है. What we want to see is your effort. So I'm hoping ये नंबर आगे जाके बढ़े and we have 50 projects. Another thing that I would like to point out is that as we move forward, जो projects हैं हमारे, we want to ensure that all of these projects are original projects. आप खुद से try करें. आपने notice किया होगा एक principle हमने last time सबके सामने रखा था that trying is more important, right? We need to try it first. तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आप परफेक्ट प्रोजेक्ट भेजें या कहीं से और देख के या किसी से प्रोजेक्ट लेके शेयर करें. आप खुद से अपना प्रोजेक्ट शेयर करेंगे, वी विल कंसिडर दैट एज अ सबमिशन. So having said that, I'm sure a lot of you have created groups also for your particular districts. I want Manveer sir to share the status of these groups. कितने groups चालू हुए हैं, and we are hoping that by the next week every group is active and बच्चों तक ये program पहुंचे. So Manveer sir, if you have an overall idea of हम कहाँ पे हैं in terms of district wise groups. Till yesterday 4 o'clock we have 345 registrations, and what is the status of today I'll share in personal chat. Thank you. Sure. Thank you so much. Chaliye, so let's start off. Let's start today's session. I hope you are all as responsive as you are always, so I'm expecting answers from everybody. तो एक हर एक टाइम की तरह let's start with what our progress is. अभी तक हम लोग we have covered algorithms, sequencing, loops पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, but we didn't discuss it completely fully. So loops is the topic that we're going to explore today. So before we start, there are some images on the screen, if you can see. I want you to observe these images. There is some description written there. What do you think is common and different in all of these? I will repeat my question. ये जो सब images हैं, इनमें क्या common है या क्या different है? You can start sharing in the chat window. Okay, so we are receiving response. Monica ma'am is saying loops. Some Ayaz sir is saying repetition. A lot of people are saying repetition, circles, all circular. That's great. Periodic in nature, rotation, continuity, repetition but at a different speed, round the clock. Different is interval. Amazing, different responses. Yes. हाँ, जितने अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं, आइडियाज ला सकते हैं इसको सोचने के. That's great. Circular, cyclic, running. Okay, that's interesting. Repeated until a certain condition is reached.
We'll take few more responses. Please type your answers in the chat box. Moving forward. Great. Revolves around in a circular path. I'm reading all the responses from the chat box. Great. Circular must have repeat 5 times. Rotation. Moving in a sequence in a repetitive manner. Centric. Periodic motion. शोएब, क्या आप यही responses expect कर रहे थे? Circular changes. Yeah, I think very Very interesting and different also. Continuity. I think the line of thinking is right. It is just by coincidence कि ये circular है. Seasons तो circular नहीं होते. Seasons को हम देख नहीं सकते movement के lens से, time के lens से देख सकते हैं. तो continuity है बिल्कुल. So ये हमने इसीलिए शेयर किया था. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आंसर्स. ये हमने इसीलिए शेयर किया था क्योंकि लूप्स और रेपिटेशंस का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट भी है और सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट भी है. ये इसलिए क्योंकि इट इज अ वेरी नेचुरल सब्जेक्ट. हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारे लूप्स रेपिटेशंस होते हैं, बट वो लूप्स और रेपिटेशन सेम नहीं होते. राइट, जनरली एक तरीका है इसको बताने का. जो भी चीज बार बार हो, दैट इज अ लूप, दैट इज हैपनिंग इन रेपिटेशन. लेकिन हर कोई लूप इज नॉट सेम. एवरी लूप कैन नॉट बी द सेम. राइट, तो हम ये समझेंगे कि लूप्स किस किस टाइप के हो सकते हैं. राइट, सो आपने नोटिस किया जो पहला image tha, which is of a clock, and we are talking about the second hand. So the second hand continuously keeps rotating, right? We know that, and this is rotating continuously and will happen every time. तो हर बार सेम ही चीज हो रही है, हर बार वो सेकेंड हैंड रिपीट हो रहा है और होते जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, जब तक बैटरी डाई आउट नहीं करेगी. Right, so this is one kind of a loop, something happening forever and every time it is the same. Right, fairly simple. If you look at the example of seasons bhi har baar hote rehte hain, right, and they happen forever, but every time the season is different. Right, we cannot say that the duration of the summer season is going to be the same as autumn or winter. तो रिपीट तो हर बार हो रहा है, लेकिन हर बार जो हो रहा है वो बदल रहा है. राइट, सो सबसे पहली ब्रॉड कैटेगरी हम ऐसे बना सकते हैं रेपिटेशंस की. इवेंट्स दैट आर हैपनिंग फॉरएवर. वी नो दैट द सेकंड हैंड इज रिपीटिंग फॉरएवर. वी नो दैट सीजन्स आर चेंजिंग फॉरएवर. But the difference between these is that what happens inside changes or stays the same. Let's take the example of a merry-go-round. Right, merry-go-round is a fairs में this game where students और बच्चे बैठते हैं and it goes round and round. जो पहली example है उसमें I have written that the merry-go-round repeats 5 times. It goes around in a circle for 5 times, but the speed is the same. Right, in the second example it goes around for 5 times, but the speed is changing. So notice, compared to the examples I gave previously, ये जो repetitions या ये जो loops हो रहे हैं वो एक specific time frame के लिए हो रहे हैं. Right, they are only happening for 5 times. उसके अंदर भी या तो same तरीके से हो रहे हैं या different तरीके से हो रहे हैं. Right, so the idea of loops and repetitions is very simple. It happens in our everyday life, and we see it in different kind of examples. But जो loops के types हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. Loops can happen forever. Loops can happen for a certain amount of time. If they happen forever, they can be same, they can be different. If they happen for a fixed number of times, they can be same, they can be different. Right, तो ये थोड़ा confusion sometimes it
creates a confusion in students that they think all loops are the same, right? Is cheese mein koi doubt? If you want me to repeat, I can repeat because I have a question for all of you. You can raise your hand. जिसको भी doubt है, please raise your hand and I'll unmute. कोई भी question? Okay, great. So what I want all of us to do is, हम लोग हर एक टाइप के लूप की एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, राइट? Broadly, these are the 4 categories. There are just 2 categories, but उसके अंदर भी दो categories हैं. Loops can be forever. Loops can be for a certain number of times. उसमें भी वो same हो सकते हैं या different हो सकते हैं. Maybe take 2 to 3 minutes, and you can share in the chat box these 4 different examples. Every teacher will share 4 different examples of different kinds of loops. If anybody can repeat this for me from the teachers, so that Not is it just we have to fetch it from real life examples, or particularly with this? What's exactly for our forever or until? real life examples, Kashif. Okay. Like Shoaib sir, हाँ जी, बोलिए काशिफ. I have example for until. Okay. Right? Like we take medicine. Doctor advises take medicine for like 5 days or Right. until you get well, and we stop. Excellent example, Kashif. उसके I will ask another question. क्या वो same है, क्या वो different है? Like same or different, I didn't get. So Pardon? you can have one medicine that can be the same. एक ही दवाई आप 7 दिन. No, this is entirely different, right? It can be many instances. Correct. So you can One- have the same medicine multiple times. You can have different medicines multiple times, right? That's an excellent example. Thank you, Kashif. Right. So, Shubh, can we go back to the previous question and have responses from everyone? जो question आपने पूछा था, 4 different real life examples share करने हैं हमें. बिल्कुल. So, 2 examples forever के, 2 examples until के. Forever में same का एक example, different का. Until में same का एक example और different का. Sir, ATM transaction, ATM machine. ATM transaction, very good example. तो वो किस category में आएंगी? Oh, it may be same, it may be different. किस में? Forever में, until में? Until sir particular transaction पे depend करता है. Correct. So मैं इसको different में डालूंगा, until के different category में डाल दूंगा. Right? The particular song which we keeps on repeating and listening. It is in the repeat mode forever until. बिल्कुल. तो वो किस में आएगा? वो सो देखिए 4 कैटेगरीज हैं. हाँ, सेम में सर. फॉरएवर के सेम में कि अंटिल के सेम में? वो डिपेंड करता है सर कि आप कितना टाइम सुनना चाहते हैं. हाँ, अंटिल ही होगा क्योंकि आप दिन रात लाइफ टाइम एक ही गाना तो सुन नहीं सकते. बिल्कुल बिल्कुल सर. सो अंटिल के सेम कैटेगरी में वो आ जाएगा. दैट्स अ गुड एग्जांपल देवदत्त जी. One more example is in forever, like sun rises. It rises every morning, but at different intervals, different timings. करेक्ट. बिल्कुल ऐसा ही similar example chat box में भी है. इम्तियाज सर का sunset and sunrise. There are interesting responses in chat box also. Charging mobile until 100%. Okay, so excellent examples.
इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए मे बी आप अपने नोटबुक पे 4 टेबल्स बना सकते हैं और हर एक टेबल में एक एक एग्जाम्पल आप शेयर करके व्हाट्सएप पे फोटो डाल सकते हैं। सर मैं यहाँ पर ऐड करूँ? जी जावेद जी, जस्ट अ सेकंड बिफोर आई टेक योर क्वेश्चन, सो आई विल रिपीट दिस फॉर द एंटायर ग्रुप। हम लोग 4 कॉलम्स बना सकते हैं और हर एक कॉलम में एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट? सो लेट्स टेक 2 minutes टू डू दैट। मैंने अभी हम क्या करने वाले हैं उसका एल्गोरिदम चैट बॉक्स में लिख दिया है, तो आप लोग वहां से पढ़कर स्टेप्स फॉलो करके 2 मिनट लेके ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। Once you are done, please send your answers in the WhatsApp group. Also give us a thumbs up so that we know कि हो गया है. I have already received one response. Great. We have received one response. That's great. 2 responses. हमारे पास कितना और टाइम है सर शिव? We'll take 30 seconds. I think we're getting excellent Yes. examples. We have received responses from 3 people. Wall paint. Okay.
Okay, so Shoaib, we have received few responses in the chat box and few in the group. अभी तक हमें कुछ responses आ चुके हैं, like काफी सारे, and some interesting responses if you can see in the WhatsApp group also. Sure. Excellent. So it's great to see examples from real life. People have taken examples of breathing, classrooms, timetable, clocks, agriculture, engine, pistons. So that is the kind of experience जो हम बच्चों को भी देना चाहेंगे, so that they don't think that ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में है. It's about real life, it's about problem solving. And this is a concept जहाँ पे थोड़ा confusion हो जाता है बच्चों को, और वो उनके कोड में भी आगे जाके दिखता है. So this can be an activity that you can do before you start the class on looping or the use of looping. तो चलिए, this was the concept of looping. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. One example I had given was of gears in a car, right? So if you notice that sometimes loops के अंदर भी loops होते हैं. So for example, we know that years keep changing. We know that in a year, months keep changing. We know that in a month, the days keep changing. So you have loops inside loops. इस concept को nested loops बोलते हैं, जब loops के अंदर और loops होंगे. ये nested loops भी हम लोग आगे explore करेंगे, और उन nested loops के types भी अलग अलग हो सकते हैं, same या different हो सकते हैं. तो एक simple सा concept has to be explored in detail. And once you understand this, आप इसको Scratch में भी use कर सकते हैं. So let's move on to Scratch. I will hand it over to Pranjali. How can we apply this this concept in Scratch? Over to you. बिल्कुल, थैंक यू शोएब. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ अभी. ओके. क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है शोएब? Yes, we can see that. Yes, madam. परफेक्ट, ग्रेट. सो शोएब सर ने हमें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से रिपीटेशन कॉन्सेप्ट, लूप्स कॉन्सेप्ट समझा हमने. बार बार, हर बार, कितनी बार, कैसे अलग अलग तरीके से चीजें रिपीट हो रही है, हमने रियल लाइफ एग्जांपल से डिस्कस किया, और आप सभी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार अलग अलग एग्जांपल्स शेयर किए हैं ग्रुप पे भी. तो अभी देखते हैं, मैंने गेम बना रही थी मैं भी इसी कॉन्सेप्ट को सोच के. तो ये हम गेम सभी ध्यान से देखेंगे. उसके बाद में आप सभी को 3 क्वेश्चन पूछूंगी जिनका आपको जवाब देना है. सो आई एम प्लेइंग द गेम नाउ. क्या साउंड भी सुन पा रहे हैं आप लोग? यस मैम. ओके, ठीक है. सो आप सभी ने आई थिंक गेम देख लिया अच्छे से. आगे बढ़ते हैं. कुछ सवाल है मेरे इसी को लेकर. तो क्योंकि हम सभी एडल्ट्स हैं तो मैं आपको कोड तो नहीं दिखाऊंगी, पर जो अभी आपने गेम देखा है उसी के बेसिस पे आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर देना है. तो बेसिकली just a second, I think there is some problem with my screen sharing. Just give me a minute. Is my screen visible now? No. Okay, just a second. Okay, I have a request to show again. So I will show game again for 10 seconds and then we will move on to the questions. So जब आप गेम देख रहे हैं तो आप ये 3 सवालों के बारे में सोचेंगे. क्या गेम में रिपीटिशन हो रहा है तो क्या रिपीट हो रहा है और किस टाइप का रिपीटिशन है. और तीसरा सवाल कि ये जो बैट्स दिख रहे हैं आपको, क्या लगता है आपको कि इन सभी का कोड सेम है तो क्यों और क्यों नहीं. मैं ये सवाल चैट बॉक्स पे भी डाल देती हूँ सो दैट जब आप गेम देखें आप ये तीनों सवालों को ध्यान में रख के सोचें. Maybe we can go one by one for each question. Yes, ma'am.
Anjali ma'am, yes, there is a repetition. Yes, we will start the answering right now. Let's take 10 seconds for everyone to have a look at the game. फिर उसके बाद हम ये तीनों सवालों को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. Okay. Thank you so much, sir. ठीक है. So आगे बढ़ें. If you are all done looking at the game and thinking about the question, please give me a thumbs up or yes on the chat box. Yes, ma'am. ठीक है. So शुरू करते हैं. पहला सवाल डिस्कस Yes. करेंगे हम. Shall I, ma'am? Just a second, मैं स्लाइड भी डिस्प्ले कर देती हूँ यहाँ पर, तो everyone is clear. Okay, can we all see the questions now? Yes, ma'am. तो अभी हम पहला सवाल डिस्कस कर रहे हैं. क्या इस गेम में रिपीटिशन हो रहा है? Yes, आप ma'am. अग्री करते हैं तो प्लीज यस चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करिए. शुभ सर, यू मे हैव टू मॉनिटर द चैट बॉक्स एंड रेज हैंड बिकॉज मैं देख नहीं पा रही हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर है तो. No problem. Everybody is saying yes. So परफेक्ट, ग्रेट. सो सभी अग्री करते हैं कि यहाँ रिपीटिशन हो रहा है. अभी हमने अग्री तो कर लिया, तो क्या रिपीट हो रहा है और कौन से टाइप का रिपीटिशन है ये? आप लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड रेज योर हैंड सो दैट वी कैन हैव फ्यू रिस्पॉन्सेज आल्सो. Great. Movement and sound. Sprites are changing their positions. Great. Sound. Bat random movement. Thank you everyone for sharing the answer on the chat box. Let's hear from. हम दो आंसर लेंगे अनम्यूट करके. So आप रियाज सर को अनम्यूट कर सकते हैं शोएब? yes. I have done. हाँ हेलो. हाँ सर, पहले सवाल का जवाब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. हाँ, आप कहना चाहते हैं दूसरे सवाल का. सॉरी. यस. हाँ तो I have already typed that I feel that sound is being repeated with the same interval, the same intervals actually. So Okay, thank you. okay, thank you. संदीप सर, मैं आपको अनम्यूट करके एक रिस्पांस लूंगी सेकंड क्वेश्चन का. क्या रिपीट हो रहा है और कौन से टाइप का रिपीटिशन है? मैम ये तो जो अनटिल वाला जो हमने पढ़ा था अभी रेपिटेशन, वो वाला रेपिटेशन हो रहा है. जब तक आप क्लिक कर रहे हैं उसके बाद दोबारा से रीअपेयरेंस हो रहा है. दैट मीन्स कि रेपिटेशन तो हो रहा है, सेम वाला रेपिटेशन हो रहा है बट डिफरेंट जगह पे हो रहा है ये. लेकिन अनटिल वाला लूप है ये, जितनी देर आप क्लिक कर रहे हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. Shoaib, do we take one more response or move ahead? Yeah, we can take one more response. बिल्कुल. मैंने साजिद सर को अनम्यूट किया है. Good morning, ma'am. Hello. हाँ सर, बताइए. Yes, we can hear you, Sajad. The bats are like the first question is इसमें क्या हो रहा है? So bats are coming for a time limit, and after like particular time limit, they are just disappearing from the screen. That is loop like for like 5 seconds or 6 seconds. And second is like sound is coming when there is like we are clicking on a particular bat, a sound is coming. Great. Perfect. तो जैसे कि आप And सभी the लोगों third one, the number of bats start increasing once like if you keep moving for a time, you just increase the time limit, the bats are more bats are coming there. ओके, इंटरेस्टिंग. राइट. सो जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ मैं जब क्लिक कर रही हूँ तो रिपीट अंटिल, संदीप सर ने बोला कुछ रिपीट अंटिल लूप हो रहा है. मैं एक और आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर जो मुझे लग रहा है हो रहा है. एक लूप
का आंसर अभी तक आया नहीं है हमारे पास. कंटिन्यूअस, आई थिंक वेरी गुड, दैट इज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग. सो हमेशा वो हो रहा है, हमेशा वो चलते जा रहे हैं, और जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो साउंड आ रहा है. सो अलग अलग टाइप के लूप्स का हमने यहाँ पर देखा यूज हो रहा है. हम आगे तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्या आपको लगता है कि ये जो सारे बैट हैं उनका कोड सेम है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? सॉरी. You can write your answer in the chat box, or Maybe you can show it once again. गेम फिर से देखें हम. Yeah. Sure. Let's do that. Here we go. शोएब, आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए चैट में. तीसरा क्वेश्चन. I have typed the question, and we are getting different responses. One is around ये roof का answer है. Most people are saying yes, some are saying yes also. Roof is saying they appear at different places, तो code अलग-अलग होगा. That's a very good response. इम्तियाज पुलवामा से बोल रहे हैं कि yes, code is same because all respond in the same fashion. तो कुछ देर में उनसे थोड़ा और इसका डिटेल में जानेंगे. Okay. Let's take 5 more seconds for the responses. No, because when clicked, they move in random direction. Okay. क्या और responses आ रहे हैं हमारे पास chat box में? Same for random. Okay. For random position. ठीक है. सो जैसे कि हम सभी ने देखा, यहाँ पर सभी अग्री कर रहे हैं कि लूप्स तो यूज हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है, और आप सभी ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोड सेम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोड डिफरेंट है. इस बात पे हम आएंगे जब हम लोग अभी खुद का गेम बनाएंगे, तो हम खुद से ट्राई करके देखेंगे कि क्या हमें जब ऐसा कुछ गेम बनाना है तो क्या सभी बैट्स का कोड सेम होगा या अलग होगा. So I will take some responses from the chat box and discuss. दिवजोत सर कह रहे हैं कि कोड अलग है क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एंड संदीप सर कह रहे हैं कि कोड सेम है बट इट्स फॉर रैंडम लोकेशन. ओके, सो लेट अस लुक एट द कोड वंस. सो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर बैट 1 बैट, हमारे पास 4 बैट्स हैं और चारों बैट का कोड सेम है. इफ यू कैन ऑल सी, कोड इज सेम, बस एक ही चीज में यहाँ पर अंतर हो रहा है, उनकी टाइमिंग, कि कब वो जा रहे हैं और कब हाइड हो रहे हैं और कब शो हो रहे हैं. सो कोड इज सेम बट जो इंस्ट्रक्शन दी है हमने वेट का, वो बस अलग है. आर वी क्लियर विद दिस? किसी की कोई सवाल या कोई कुछ ऐड करना चाहता है यहाँ पर?
ओके, अंजलि मैम का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, कोड सेम है बट इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, सो हाउ कोड इज सेम? क्या कोई इस सवाल का जवाब देना चाहेगा? अंजलि मैम, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी कि इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, हाउ इज द इंस्ट्रक्शन डिफरेंट? सर मैं अनिल जी को बताना चाह रहा हूँ कि जो ये कोडिंग्स किया हुआ है ना, जो कोड्स हैं वो तो बिल्कुल सेम है, जैसे टाइम है तो टाइम टाइम ही है, करेक्ट। बट जो क्या कहते हैं टाइम का डिफरेंस है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, वो तो हम चेंज कर रहे हैं ना। तो Correct. दैट मीन कि कोड जो था कि वेट करना है, वेट करना है, वो तो सेम है, बट टाइम हम चेंज करें तो कोड इज सेम, बट जो हम वो 2 3 4 5 सेकंड्स डाल रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। तो दैट सिंपली मीन्स कि कोड तो सेम है बट टाइमिंग हम थोड़ा बहुत अल्टर कर रहे हैं। करेक्ट, हमने एल्गोरिदम या अपने प्लान को बदला नहीं है, और एल्गोरिदम एंड कोड इज द सेम। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज वो जो वेरिएबल है टाइम का, उसका डिफरेंस या उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, राइट? I think code different है, logic same है, because या code different है, code is not same, but I believe करेक्ट, logic same है. करेक्ट, एग्जैक्टली। द एल्गोरिदम, द लॉजिक, द प्लान, द सीक्वेंस इज द सेम। कोड में एक ही डिफरेंस है, वो टाइम का है, जो टाइम का वेरिएबल है, कितने सेकंड्स के लिए वो वेट करे, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग। द एल्गोरिदम इज एब्सोल्युटली द सेम। Because for a same logic we can have different sets of codes. करेक्ट, कोई एक तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कोई दूसरी वे से इम्प्लीमेंट करना चाहेगा, बट लॉजिक कैन बी सेम. करेक्ट, That's what it's over here. एब्सोल्युटली। थैंक यू काशिफ फॉर सेइंग दैट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ही एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कोड से आप कर सकते हैं, आपका कोड बदल सकता है फॉर द सेम एल्गोरिदम, राइट? सो हियर द एल्गोरिदम इज द सेम, द कोड इज स्लाइटली चेंजिंग, एंड कोड में जो बदल रहा है दैट इज द वेरिएबल टाइम। ओवर टू यू फ्रेंड्स। You're on mute. राइट, सो थैंक यू फॉर समराइजिंग। सिर्फ वेट वैल्यू जो है वो हर स्प्राइट के लिए चेंज हो रही है, बाकी जो है कोड लॉजिक हमारा सबका सेम है, एल्गोरिदम सेम है। सो अब क्योंकि हम ने सभी ने समझ ही लिया है किस तरह से इसको हमने डिजाइन किया है गेम को, सो हम एक खुद का गेम डिजाइन करते हैं, सेम थीम पे होगा, जिसमें हमारे आप सभी को क्या करना है, स्प्राइट्स को डिसअपेयर करना है, और जब वो डिसअपेयर होंगे तो एक साउंड प्ले होगा जब क्लिक करेंगे, एंड देन रीअपेयर होंगे। सो यू नीड टू क्रिएट अ गेम ऑन सेम थीम, योर स्प्राइट्स शुड डिसअपेयर एंड प्ले अ साउंड व्हेन क्लिक्ड ऑन एंड देन रीअपेयर। आर वी क्लियर विद दिस थीम? Your sprites should disappear, play a sound when click on it, and then reappear. I am also writing this in the chat box. So ये कैसे बनाएंगे, इसका हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड। सो सबसे पहले, जैसे अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, एल्गोरिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, इस गेम को बनाने के लिए हम सोचेंगे कि एल्गोरिदम कैसा दिखेगा। सो 4 सवाल हैं। हाउ डू यू वांट योर गेम टू स्टार्ट, हाउ डू यू वांट स्प्राइट्स टू मूव, what else could your sprites do, and how will actions be repeated? So हम इन चारों सवालों को ध्यान में रखते हुए एक एल्गोरिदम बनाएंगे for our game. Right, so what I will do now is I'll quickly share a template with you all here for designing your game. सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, आप सभी को स्प्राइट्स और बैकग्राउंड चूज करना है, फिर प्लान लिखना है उन चारों सवालों को ध्यान में रखते हुए, और फिर डिसाइड करना है कि क्या हर एक स्प्राइट का आप एल्गोरिदम सेम रखेंगे या डिफरेंट रखेंगे। सो वी कैन स्टार्ट नाउ
here is the set of questions. आप इन्हीं को अपने कॉपी में लिखकर एक अपने गेम बना सकते हैं. We will take 2 minutes to design the game for our design the plan for our game. तो शुरू करते हैं. एक एग्जाम्पल जो मैंने गेम बनाया था उसका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है. Are we good to start? Perfect. We will take 2 minutes to write the algorithm for our game. हर एक का गेम यूनिक होगा क्योंकि आपका स्प्राइट विल बी यूनिक. आपके स्प्राइट की मूवमेंट यूनिक हो सकती है. योर साउंड विल बी यूनिक. आपका जो लूप है जो आप यूज करेंगे वो यूनिक होगा. एंड योर एल्गोरिदम विल बी यूनिक. सो before writing the code, you can just write this down. And if you're writing on a notebook, you can share, or we will just take responses from you, and Pranjali can keep making the game on Scratch. हमें एक वीडियो आया है गेम का. सो हमें वो वीडियो हमें अभी गेम बनाना नहीं है. पहले अभी हमें गेम का डिजाइन करना है और प्लान लिखना है अपनी कॉपी में. We have 1 more minute. आप इन सभी सवालों को ध्यान में रख के अपने गेम को डिजाइन करेंगे और आप एक स्प्राइट के लिए भी अभी सिर्फ एल्गोरिदम लिख सकते हैं. शुएब, क्या हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं प्लान के? हम जब स्क्रैच में अभी उसको बनाएंगे तो किसी ने जो प्लान शेयर किया है हम वही गेम बना लेंगे, वही प्लान को रेफर करके. No, we have not received written plans. Maybe we can go to Scratch and then we can take responses from people, or if somebody wants to share tab tak, we can wait till then. Sure.
सो ठीक है, आप क्या हम शुरू करें स्क्रैच में बनाने, या किसी के पास कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है जो आप लोगों ने लिखा हुआ है और डिजाइन किया है, तो हम वो ही रेफर करके आपका गेम बना लेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे सबसे पहले क्या करना है मुझे? व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? ओके, आई सी समवन इज रेजिंग हैंड्स। थोड़ा हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, जैसे आप मुझे गाइड करते जाएंगे उस तरह से मैं यहाँ पर आपके लिए गेम बनाऊंगी। वो टेक अ स्प्राइट, आई रिसीव वन रिस्पॉन्स। कोई भी स्प्राइट ले लेंगे हम फटाफट से। तो वी विल टेक बर्ड, किसी ने लिखा था तो आई विल चूज द बर्ड। I will just choose this bird and delete the cat sprite. शोएब सर, आप मुझे गाइड कर सकते हैं चैट बॉक्स में से पढ़ के क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? Sure. We can also choose a backdrop or a background. कौन सा बैकड्रॉप लिखा है किसी ने, या मैं अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लूं? Any specific requests for the backdrop? Forest. Since in our previous example we had a forest sort of a background, we can take that. The forest. Okay, great. So हमने सारा जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो ले ली हैं अपने गेम को डिजाइन करने के लिए। अभी थोड़ा सोचते हैं कि गेम में होगा क्या, क्या करने वाले हैं हम इस गेम में। देयर कम्स द प्लान। सो लेट्स राइट द प्लान फॉर दिस स्प्राइट फॉर द इन द गेम। इफ एनी वन ऑफ यू कैन शेयर द प्लान, क्या हो रहा है आपके गेम में और हम क्या करें यहाँ पर इसको डिजाइन करने के लिए। ओके, आई सी फ्यू रिस्पॉन्स। स्प्राइट मूव होना चाहिए। ओके, बर्ड इज फ्लाइंग। ओके, आई नीड फ्यू मोर रिस्पॉन्सेज। जिस तरह से हमने गेम देखा था बैट का, आप उसी को थीम को ध्यान में रख के सोचिए। फ्लाइंग 3 times, switch costumes, keep it flying, and whenever it's sit on a branch we'll try to catch it. Okay, so I see lot of steps, but मुझे कुछ एक प्रॉपर प्लान नहीं दिख रहा है कि मैम पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। Okay, you can change the costume. So मुझे लगता है कि okay, use forever loop. So मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बर्ड जो है सबसे पहले तो पूरे स्क्रीन पर कहीं भी चला जाए, है ना। सो आई विल टेक दिस गो टू रैंडम पोजिशन। इफ आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मैं जब क्लिक कर रही हूँ तो ये कोई भी पोजिशन पर जा रहा है। ठीक है, अब जब कोई भी पोजिशन पर जा रहा है उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये कंटिन्यूअसली कोई भी पोजिशन पर जाता रहे। ओके, I am receiving lot of responses in the chat box. So repeat loop, exactly same मेरे question का answer. पर क्या हमारे गेम में जो हमने देखा था वो ये हो रहा था? कोई मुझे बताना चाहेगा? मैं चाहती हूं कि जब तक मैं स्टॉप नहीं करूं ये जो बर्ड है वो कंटिन्यूअसली रैंडम मूव होता रहे। Okay, repeat until clicked and forever. There are two things which we are receiving. अभी हम एक ही स्प्राइट से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो हम दूसरी स्प्राइट्स के लिए फिर लिख लेंगे, तो पहले हम एक स्प्राइट के लिए कोड देखेंगे। अभी का मेरा सवाल था, मैं चाहती हूं कि ये जो बर्ड है ये पूरे जब तक मैं स्टॉप नहीं करूं गेम को तब तक वो मूव होता रहे।
तो यहाँ जो मैंने किया है क्या वो सही है या मुझे क्या बदलाव करना है यहाँ पर? Okay, use forever. Great. Thank you so much. Put in forever. I'm receiving right response now. मैम मुझे इजाजत है, मैं ऐड करूं? बिल्कुल. हाँ, आप मैडम इसके ऊपर से एक और लूप लगा सकते हैं क्योंकि 10 टाइम सॉरी 10 टाइम्स तो इसको रिपीट करना है। आप बाहर से एक और लूप लगाइए फॉर एवर। तो फॉर एवर से क्या होगा, एक नेस्टेड लूप होगा, लूप विद इन द लूप आएगा और ये कंटिन्यूअसली तब तक मूव करता रहेगा जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे। ओके, सो ठीक है. पहले कोई और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एग्जाम्पल कि मैं रिपीट के ऊपर ही फॉर एवर लगा देती हूँ. पर पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है? राइट. सो अब ये तो हो रहा है जो मैं चाहती थी कि ये कंटिन्यूअसली मूव होता रहे. ग्रेट, दिस इज हैपनिंग. अभी जो सर ने शेयर किया है वो भी देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर मैं फॉर एवर लगा दे रही हूं. 10 बार, हमेशा 10 बार रिपीट होगा. मुझे तो दोनों कोड सेम ही लग रहे हैं. But you have to Madam, choose now the time. which is time. Wait for 2 seconds. हाँ राइट. पर ये जो ऊपर और नीचे लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं. मैं पहले ऊपर वाला कोड रन कर रही हूँ. स्टॉप कर रही हूँ मैं. अभी मैं नीचे वाला कोड रन कर रही हूँ. मुझे तो दोनों सेम ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं. क्या किसी को कुछ अंतर दिख रहा है? मैडम जो नीचे वाले में आपने रिपीट 10 लूप लगाया, इसको निकाल दीजिए मैडम. हाँ बिल्कुल, है ना. सो सर आपने नेस्टेड लूप्स का जो एग्जांपल शेयर किया था, तो दोनों यहाँ पर सेम ही काम हो रहा है. सो आई विल यूज फॉर एवर अगेन. राइट. सो यहाँ पर अभी ये हो गया. अब मैडम इसके बाद मैडम हम इसमें हम टाइम स्पेस, क्योंकि ये रैंडमली ज्यादा मूव हो रहा है तो थोड़ा सा धीरे धीरे जब हो जाएगा तो उसमें हम इसको टाइम देंगे. और उसके बाद उससे पहले हम इसमें आवाज भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने शायद आपको व्हाट्सएप में एक डाला था, मैंने बनाया था एक, तो उसमें आवाज भी हमने डाली और हमने उसमें टाइम भी डाला. फिर जब उसको हम प्ले करते हैं तो उसके बाद उसमें कंटिन्यूअसली तब तक ये मूव करता है जब तक हम उसको स्टॉप खुद नहीं करेंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग. हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो पहले हमने गेम में ये देख लिया कि हमें ऐसा कुछ चाहिए था जो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, मूव होता रहे जब तक हम स्टॉप करें. मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ. सॉरी फॉर इंटरप्शन. क्योंकि देखिए दोनों कोड तो सेम काम कर रहे हैं, दोनों कोड ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमें अब एज ए प्रोग्रामर यहाँ पर प्रोग्रामर जो है देखना है कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है इसमें, यानी जिसमें कि रिसोर्सेज कम होंगे. जो हमारा सिस्टम है, जो सीपीयू रिसोर्सेज है या रैम इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो वी हैव टू चूज द बेस्ट सोल्यूशन अमंग दिस. मुझे लग रहा है कि जो आपने कोड रखा है अब कि जिसमें नेस्टेड लूप नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट कोड एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो रहे हैं, काम तो सेम हो रहा है. सो देयर शुड बी डिफरेंट सॉल्यूशंस बट वी हैव टू चूज द बेस्ट सॉल्यूशन. थैंक यू. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग. सो सोल्यूशन अगेन, बहुत तरीके, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं इस गेम को भी डिजाइन करने के लिए. पर हमें वो तरीका पिक करना है, वन विच इज इजी टू एग्जीक्यूट और स्मार्ट तरीका बेसिकली. राइट, जैसे कि सर ने बोला. सो आगे बढ़ते हैं इस गेम में. हमने डिजाइन कर लिया कि सारे जो बर्ड है वो हमेशा इस स्क्रीन पे घूम रहा है. अभी मुझे चाहिए, गेम में मजा नहीं आ रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तो क्लिक मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ, देख ही नहीं पा रही हूँ. तो उसके लिए मुझे चाहिए कि ऐसा कुछ मैं बनाऊं जब मैं क्लिक करूं, ठीक है, आई गेट अ क्लिक, तो मैं क्लिक करूं तो साउंड आना चाहिए. पर उसके पहले क्लिक करने तक मुझे पहुंचने के लिए दिस इज टू फास्ट. व्हाट शुड वी डू? वेट
Wait, Wait amazing. for 2 seconds. Can we all write the answers in the chat box also, so that हम सभी को पता चले कि हम सभी सेम पेज पे हैं और हम सभी को समझ में आ रहा है. I quickly want responses. This is too fast for me. मुझे इस टाइप का गेम खेलने में मजा ही नहीं आएगा जहां पर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ क्लिक करूं. थोड़ा अच्छा गेम बनाते हैं. Wait, okay, wait. Great. I need few more responses. Wait, कोई बोल रहा है wait और कोई बोल रहा है wait for 2 seconds. परफेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं फटाफट. वेट लगाते हैं ब्लॉक. It can be wait for 2 seconds, it can be wait for 1 second. Now थोड़ा सा ठीक लग रहा है गेम जहां पर I can still see and click. Perfect. अब अगर हम इसको और स्मूथली, क्योंकि ये जंप जैसे लग रहा है कि जंप उठा रहा है, तो हम इसको एज ए मिली सेकेंड्स भी वहां ऐड कर सकते हैं ताकि एक स्मूथ मूवमेंट जो है वो हो जाए. राइट. सो अभी जहाँ 1 सेकंड लिख सकते हैं हम पॉइंट में लिख के मिली सेकेंड्स बना सकते हैं और ये स्मूथली मूव कर सकता है. बिल्कुल. सो हम कुछ किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. वेट हम जितनी देर का चाहें उतनी देर का दे सकते हैं. यहाँ पर लॉजिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना. सो इस तरह से वी हैव डिजाइन्ड इट. नाउ व्हाट नेक्स्ट क्या चाहिए हमारे गेम में, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू थिंक ऑफ दैट प्लान. Madam, now we will add the sound. राइट. वी विल यस वी विल ऐड द साउंड. पर साउंड कब आना चाहिए? जब मैं इसको क्लिक करूं तो साउंड आना चाहिए. So I will show you 2 blocks. So for the sound, ma'am, we should put like some coordinates. उस कोऑर्डिनेट पे अगर वो ये आए तो वहां पे क्लिक होने से साउंड आना चाहिए. कोई कंडीशन रखेंगे मैम? we put coordinates like x, where should be the x coordinate or y coordinate like that. Okay, interesting. So सर आप कहना चाह रहे हैं कि जब साउंड कब बजे, जब भी हम इसको कोई कोऑर्डिनेट पे रखें? Yes, yes, ma'am. Okay. तो मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहूंगी. हम यहाँ पर कह रहे हैं कि साउंड तब आएगा जब मैं इस बर्ड को क्लिक करूंगी. Then it will work on mouse click event. तो ये इवेंट पे डिपेंड होगा मैम. Ma'am, when sprite is clicked. Right, amazing. On an event. So I can see there are few people who are responding. So we want everybody to participate. So I really encourage, can we all please write answers in the chat box also? So यहाँ पर 2 events हैं. जब हम फ्लैग पे हेलो. Yes, continue, Pranjali. थैंक यू. सो जब हम फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा गेम रन हो रहा है, और जब हम स्प्राइट पे क्लिक कर रहे हैं जो कि यहाँ पर मेरा बर्ड है तो कुछ साउंड आएगा. If you all can see here. Right. किसी को कोई सवाल यहाँ तक? Please type your question in the chat box. Okay. I see one response from Sunil sir. जब when mouse is clicked, sound आना चाहिए. Okay, great. इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी. जब हम माउस पे क्लिक करेंगे तो साउंड आना चाहिए. माउस हमारे लिए है कि हम माउस पे क्लिक कर रहे हैं, पर वो कंप्यूटर के लिए एक इवेंट है कि हम यहाँ पर इस स्प्राइट को क्लिक कर रहे हैं तो साउंड आएगा. सो दिस इज वन. यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, हाइड और शो नहीं हो रहा है. सो लेट अस ट्राई दैट आल्सो. मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, ये जो माउस वाला क्लिक्ड है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बर्ड पे क्लिक ना करें लेकिन माउस को क्लिक करें तब भी साउंड आ जाए? सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाई, क्या आप रिपीट करें? ये जो अभी हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में ये किया हमने कि जब हम बर्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो साउंड आ रहा है, तो क्या हम इसमें ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि हम कहीं पे भी, अगर मतलब दैट मींस कि बर्ड के अलावा कहीं पे भी क्लिक करें तो साउंड आए?
करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं संदीप जी। आप किसी भी एक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं किसी इनपुट से, राइट। इस चीज में हम लोग जो कोड लिख रहे हैं वो स्प्राइट के अंदर लिख रहे हैं। सो वी आर राइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्प्राइट। सो वन क्वेश्चन टू यू इज, उस टाइम पे हम कहाँ पे लिखेंगे वो, राइट। सो दैट कैन मे बी फॉर अनदर स्प्राइट, और उसमें आप इनपुट कुछ भी डाल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप फॉरवर्ड प्रेस कर रहे हो तो वो कुछ करेगा। सो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। बट जब आप स्प्राइट के लिए लिख रहे हो तो आपको स्प्राइट का ही ऑप्शन आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्प्राइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू शोएब फॉर एडिंग दैट। सो पॉसिबिलिटी बहुत है, इसलिए ही मैं वापस जाना चाहूंगी जो हमने डिजाइन का प्लान किया था, राइट। सो गेम हमें किस तरह से डिजाइन करना है, कभी हम वो पहले ही उसको सोच लेंगे, प्लान लिख लेंगे, तो हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि हम जब हम कोड लिखेंगे। नहीं तो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज विच वी कैन कीप ट्राइंग, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम आउटपुट तक क्या पहुंचना चाहते हैं, वो क्या फाइनल आउटपुट हम चाहते हैं, उसको डिजाइन करने के लिए हमारा प्लान क्या है, और उस प्लान को हम कोड में कन्वर्ट करें। So this is a very simple game that we have tried now. There is something which is missing. We have not added hide and show. Of that, I will leave up to you, and you all can create. I will share one task जिसमें आप hide, show, and adding more sprites. उस तरह से एक game game create कर सकते हैं using all the blocks that we had discussed. So Pranjali, can you repeat once again? So the outcome that we want to see is basically whenever we click, there is a sound and the bird disappears, right? Right. Got it. I will also share that on the screen, जो task है. हमने शुरुआत तो यहाँ से की थी कि हमें ऐसा एक गेम बनाना है जब sprites should disappear and play a sound when clicked on and then repair. पर मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर हमने प्लान लिखा नहीं और शेयर नहीं किया, that's why we started creating the game, पर हम ये disappear तो during the course of creating the game we missed it. So I feel that it is important for all of us to write the plan before we create anything. So this is the task for all of us. Sorry. Okay. Great. राइट अंजलि मैम, फर्स्ट यू नीड टू राइट एन एल्गोरिदम। इस टास्क को करने के लिए सबसे पहले हम एक डिजाइन करेंगे, उस टेम्पलेट को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसी टेम्पलेट में हम पहले डिजाइन करेंगे, फिर उस प्लान को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे स्क्रैच में। किसी को कोई भी सवाल है टास्क में? Any questions? I think Sunil ji hand raise कर रहे हैं शायद. Okay, so the task is very simple. इसी game में हमें whenever we click, it disappears and then reappears again. So we will try and implement this on our own, and we can share this with the rest of the group. If you need any help during the task, then as you know, we are open to responding to any queries or questions. अगर आप को टास्क के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम है, आप ग्रुप पे क्वेश्चन डाल सकते हैं. We will help. There are other members also who can come in and help you. Any other questions? We will definitely respond, Ishtiyaq ji. अगर आपका एक specific question होगा, specific help होगी, we will definitely help you with that. And you can also reach out to me separately or Pranjali, because we have our number is on the group.
तो कोई भी स्पेसिफिक जहाँ पे आप रुक जाएं या कुछ डाउट है, आप डेफिनेटली हमको रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्सक्यूज मी, हेलो। यस मैम, बोलिए। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था कि अगर हम डिफरेंट ये स्प्राइट्स यूज कर रहे हैं तो उसकी कोडिंग सेम है क्या? एक स्प्राइट की कोडिंग हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दूसरे स्प्राइट में? वो मैं कल ट्राई करी थी, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिली और हो नहीं रहा था। करेक्ट। सो यूजुअली एक विंडो पे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं मैम, बट जब आप डुप्लीकेट हो रहा था लेकिन Correct. वही चीज दूसरे पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रही थी। सर Copy paste नहीं। मैं गाइड करूंगा इनको, वही Correct. कोड ड्रैग करके ना उसी स्प्राइट पे चले जाओ, बॉटम में जहां स्प्राइट रखे ना आपने, उस स्प्राइट पे ले जाओ, और जब स्प्राइट मूवमेंट करेगा ना तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? यानी आप स्क्रीन से पहले स्प्राइट का कोड ड्रैग करके दूसरे स्प्राइट के ऊपर ले जाओ, वो हाईलाइट हो जाएगा, और जब वो मूवमेंट कर रहा होगा इसका मतलब वो आपका वहां पेस्ट हो गया। रंजन एक बार दिखा सकते हैं फिर से द सेम? शोएब सर मैं बता सकता हूँ? एक सेकेंड ये सर ड्रैग करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट हुआ, एंड आई थिंक आई हैव सिलेक्ट दिस स्प्राइट। ड्रैग करिए उसको। कोड को बोल रहे हैं सर आप ड्रैग करने के लिए? हाँ यस पूरा कोड ड्रैग करो। ओके। हाँ, जब वो मूवमेंट करेगा, थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट करेगा वो वाला स्प्राइट, उसके बाद यहाँ आप उसको ओपन करिए, उसका कोड पेस्ट हुआ होगा वहां पे। राइट। एक वो तरीका भी है, एक और सिंपल तरीका भी है। आपको इसी स्प्राइट का कोड कॉपी करना है तो स्प्राइट को भी आप कॉपी करके यहाँ पर डुप्लीकेट कोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप एक नया स्प्राइट सिलेक्ट कर रहे हैं। अंजलि मैम, आई थिंक आपका सवाल ये था कि इसका कोड आपको इस स्प्राइट के लिए चाहिए, राइट? जी राइट मैम, shall I add? Go ahead. I think Javed is also saying something. या एक्चुअली जब मैं एक चीज पहले यहाँ पे देखना चाहता हूँ, जो ही हम कोड ड्रैग कर रहे हैं तो क्या वो पहले स्प्राइट के लिए पास वहाँ रहता है? यस वो कोड पहले स्प्राइट पे भी रहेगा, दूसरे पे भी चला जाएगा। It will not go anywhere. दूसरी बात जो मैंने की, सपोज आप जहाँ पे कोड है इस समय स्प्राइट 3 के लिए, आप इस पे क्लिक कीजिए और Ctrl+C कीजिए। नहीं, वो तो आप डुप्लीकेट करके भी ड्रैग कर सकते हैं। वो करते हैं, लेकिन Ctrl+C और Ctrl+V करके भी कॉपी पेस्ट हो जाता है सेकंड स्प्राइट पे। अच्छा चलिए। हाँ, Ctrl+C फिर दूसरे स्प्राइट पे जाके सिर्फ Ctrl+V, पेस्ट नहीं, Ctrl+V। ओके। और एक और क्वेश्चन था कि हर स्प्राइट में हमें हर बार ये फ्लैग इवेंट जो है, इवेंट को कॉल करना है या एक ही बार कॉल होगा ये? That's a good question. वेरी गुड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा मैम? मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही स्प्राइट पे एक ही स्प्राइट के कोड में किया, दूसरे स्प्राइट के कोड में नहीं किया, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? एक्चुअली अगर एक कोडिंग से देखा जाए तो इवेंट एक ही बार कॉल होता है, रन एक ही बार होता है। करेक्ट। लेकिन इनमें स्प्राइट्स हर इवेंट को करने के लिए हर बार कॉल करना पड़ रहा है, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। एब्सोल्युटली। सो हर एक स्प्राइट, हर एक कैरेक्टर के लिए आपको वो करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली देन विल यू इनिशिएट दैट कोड। तब तक वो इनिशिएट होगा ही नहीं, राइट? राइट। सो थैंक्स मैम। थैंक यू। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर व्हेन फ्लैग क्लिक नहीं लगाया हुआ है, सो दिस वोंट रन। सो इस कोड को आप जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर को कि रन कब करना है, तब तक वो रन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन फ्लैग क्लिक आपको हर एक स्प्राइट के लिए लगाना पड़ेगा। अंजलि मैम, अगर आज का आपका वो लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैम वो जो आपने लास्ट क्लास में आपने कहा था ना, ग्लोइंग ऑफ द वो नंबर्स को करना था क्लॉक में, मैम मेरे से नहीं हुआ। अगर आप क्विकली अगर थोड़ा सा बता दें। यस मैडम, वो हमें भी दिखाइए मैडम। श्योर, बिल्कुल। सो हम थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। Actually, I would like to share my screen. I have done a little bit of it, but I'm not sure whether I have done it correctly or not. So we can let others display it, but आप पूरा कोड मत दिखाइए। तो ऐसा करते हैं कि आप
ग्रुप को बता सकते हैं कि कैसे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी कैन टेक? मैं सर पहले अपना जो स्क्रीन है शेयर करना चाहूंगा, इफ यू कैन अलाउ मी। श्योर सर, वी विल डू दैट। सर, पर आप ग्लोइंग वाला जो पिछला सवाल था कि ग्लो कैसे करना है, क्या वो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हो रहा है? प्लीज अलाउ मी अ मिनट टू एक्चुअली ज्वाइन थ्रू माय लैपटॉप प्लीज। 1 मिनट में मैं Sure, maybe Pranjali, we can do it for the rest of the group till then. Okay, so somebody has requested जो हमारा पुराना टास्क था पिछले हफ्ते का, can we show that for everybody? So let's do that quickly. Our task was very simple. We had 4 numbers in a clock, और हर एक नंबर तक जब सेकेंड हैंड पहुंचता है तो वो ग्लो करना चाहिए. So following the algorithm quickly, we will take all of those numbers. क्या मैम ऐसा कोई तरीका है कि हम एक ही साथ 2 से ज्यादा नंबर्स को ले जाके वहां पे पेस्ट कर पाए? One question at a time. हाँ, विक्रांत जी बोलिए. सर, क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम एक से ज्यादा स्प्राइट्स को वन टाइम ऐड कर सकें, जैसे 1 2 3 6 9 को मैं एक ही बार ले जा सकूं, या मुझे बार बार आके ही स्प्राइट क्लिक को जो चूज करना? हर एक स्प्राइट आपको सेपरेटली ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. करेक्ट. और कोई ऑप्शन नहीं है? थैंक यू सर. राइट, सो नंबर्स हमने ले लिए हैं. We'll also take the सो क्योंकि अभी सवाल सिर्फ नंबर्स ग्लोइंग का है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे एंड वी विल नॉट सी होल हैंड क्लॉक का हैंड टर्निंग. सो जिसने ऑलरेडी ट्राई किया है, मे बी दे कैन शेयर उन्होंने क्या ट्राई किया और कैसे उनका चला. जिसका सही से चल रहे हैं, नंबर्स ग्लो कर रहे हैं, मे बी वी कैन टेक सम देम. वी विल नीड न्यू रिस्पांस, जिन्होंने अभी तक एक भी बार आंसर नहीं किया है. मैम, लुक्स में जाके हमारे पास एक ऑप्शन आता है. ओके. सेट ब्राइटनेस, चेंज कलर में हम वहां पे कलर की जगह ब्राइटनेस को चूज करेंगे. नीचे ब्राइटनेस को चूज करेंगे तो ये जो है, अब हम टाइमर की मदद से जो है, जब हम फ्लैग को क्लिक करेंगे और प्रॉपर टाइमर देके हर एक स्प्राइट को ग्लो करवा सकते हैं. ओके सर, टाइमर वाला कॉन्सेप्ट, अब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, क्या हम उन्हीं को यूज करके ये बना सकते हैं? मैम, मैंने जो सबमिट किया था प्रोजेक्ट, वो तो टाइमर की मदद से यूज किया था. Amazing. I have done it a little bit differently. ओके, सो आई थिंक सभी ने अलग अलग ट्राई किया है. हम लोग जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसको ध्यान में रख के इसको ग्लो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगेन तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं. हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जो हम प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं. सो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. ओके, ग्रेट. सो आई विल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक्स में देयर इज एन ऑप्शन चेंज कलर. ओके, सो मैंने अभी स्प्राइट 3 के लिए कोड लिखा हुआ है. सो व्हेन आई क्लिक ऑन फ्लैग, इट इज चेंजिंग द कलर. सो दिस इज वेरी इनिशियल फर्स्ट थिंग जिससे आप कलर चेंज कर सकते हैं. अब जो हमारा टास्क था उसमें ये लॉजिक था कि जब घड़ी का कांटा इस नंबर पे आएगा तो ये नंबर ग्लो करेगा. राइट Ma'am, I did the same thing. Actually, I started from 12. Then I put the time. मैंने वेट का ऑप्शन दिया था वहां पर. जब 12 पे गड्डी होगी, एक कांटा होगा, तो उसके बाद मैंने वेट लिखा. वेट डाल के मैंने 15 सेकंड इसका वेट डाला जब तक ये 3 पे पहुंच जाए, क्योंकि 3 तक पहुंचने के लिए इसको 15 सेकंड मूव करना है.
तो फिर 6 तक पहुंचने के लिए इसको 30 सेकंड्स वेट करना है, 9 तक पहुंचने के लिए इसको 45 सेकंड्स वेट करना है, और 12 तक दोबारा पहुंचने के लिए इसको 60 सेकंड्स वेट करना है। मैंने वेट ऑप्शन लगा के फिर चेंज कलर ये ऑप्शन लगाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैम जो टाइमर की बात मैंने करी वो यही वेट का यूज करते हुए ही की बात मैं कर रहा था। ओके, गेट इट, थैंक यू सर। आई थॉट आपने कोई टाइमर अलग से वेरिएबल बना लिया, तो इसलिए मुझे लगा कि आप थोड़ा और आगे चले गए हैं कॉन्सेप्ट में। नहीं मैम, वेट का यूज ही किया था। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। एंड मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम आपकी माइक ऑफ है, म्यूट है। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, we can hear you. ठीक है, सो अभी हमने जिनका भी सवाल था कि वो कलर कैसे चेंज हो रहा है, तो कलर का ऐसे चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पर आपको लॉजिक नहीं बताया है, बस मैंने बताया है कि ये चेंज कलर कौन सा ब्लॉक यूज करके हो रहा है। तो आपका सवाल लॉजिक लेवल पे भी था या सिर्फ आपको ब्लॉक कौन सा यूज करना है ये नहीं पता था? संदीप सर, आई थिंक आपका सवाल था। ब्लॉक मैम, मैडम ग्लो तो हम कर सकते थे, लेकिन हमारे कहने का मतलब था जो ये यहाँ पर बीच में ये जो एरो है, जब ये 6 पर पहुंचेगा तो 3 तो अपने कलर में आना चाहिए, लेकिन 6 ग्लो होना चाहिए। फिर जब 9 पर आना चाहिए, 9 ग्लो होना चाहिए, लेकिन 6 और 3 वैसा ही रहना चाहिए जैसे पहले है। तो जो हमने किया था उसमें सारे ग्लो हो रहे थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि यानी कि अगर 3 यहाँ पर ग्लो है तो 12 अपनी जगह एक कलर में है। जब ये जो एरो है 6 पर पहुंच जाएगा तो 3 अपने ही कलर में आना चाहिए और 6 ग्लो होना चाहिए। राइट। तो आप अगर एक बार उस कलर का इफेक्ट चेंज कर देंगे, यू कैन वेट फॉर सम टाइम, आप उस कलर का इफेक्ट वापस 0 करके वो फिर से 0 पे आ जाएगा। When you go to the next number, फिर से आप उसका इफेक्ट कलर चेंज करेंगे कुछ टाइम के लिए। When it moves to the next number, you do it by 0. So the mistake that you are doing is maybe not changing the color back to its original effect. राइट। सो 2 तरीके हैं यहाँ पर चेंज कलर इफेक्ट। आप 2 बार ब्लॉक यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर एक और है सेट कर सकते हैं आप उस कलर को वापस उसके ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं ना कि इफ वी वेट फॉर अ सेकंड एंड आफ्टर सेकंड वी विल रिवर्ट द प्रोसेस। पहले हमने तो ग्लो कर दिया, चेंज कर दिया कलर या कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, आफ्टर वेटिंग फॉर 1 सेकंड एंड वी विल सेट अनदर कमांड कि चेंज कलर टू बिल्कुल, अर्लियर कलर। एब्सोल्युटली। सो इसमें आप देख रहे हैं एक चीज को अकम्प्लिश करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, राइट? यू कैन चेंज द स्प्राइट्स, यू कैन सेट द कलर, चेंज द कलर। एक ही चीज को करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग इट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्क्रैच हियर। सो किसी का तरीका सही, ऐसा नहीं बोल सकते सही है। कुछ केसेस में आपका एल्गोरिदम ज्यादा छोटा हो सकता है, दैट वुड बी अ राइट अप्रोच। any other doubts in this or हाँ मैम सर, और एक चीज था इसमें, क्या हम कॉस्ट्यूम्स का भी यूज कर सकते हैं ना इससे? मतलब फॉर एग्जांपल वी विल यूज 2 कॉस्ट्यूम्स फॉर ईच नंबर, 3 के लिए 2 कॉस्ट्यूम। absolutely we can do that also. We can hide one costume for some time and then we can get another costume. तो वही अलग-अलग तरीके हैं एक आउटकम तक पहुंचने के लिए। शेब सर, हम यहाँ पर एक और तरीका भी कर सकते हैं, जैसे एरो पहुंच गया 3 पे या 6 पे, तो अगर हम उसमें देखेंगे, अगर हम टाइमर लगाते हैं तो टाइमर के हिसाब से हम इफ कंडीशन लगाएंगे, या हम डिग्री के हिसाब से इफ कंडीशन लगाएंगे कि जो ही आप 6 के बराबर पहुंच जाओगे तो देन यू कैन चेंज दिस कलर टू नेक्स्ट वन। एब्सोल्युटली, हम इसी ये भी एक तरीका है कि इफ कंडीशन लगा सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान में रखिए, राइट? जैसे ही हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जो कोड्स हम 10 लाइन में लिखते हैं, शायद हम उसको 3 लाइन में लिखें, राइट? मैं इसको कंडीशनल्स और एंगल्स के कोड से शायद 4 लाइन में ही अकम्प्लिश करूं, राइट? बट अदर्स डोंट नो कंडीशनल्स अभी। हमने पूरे ग्रुप को अभी कंडीशनल्स के बारे में नहीं बताया। दैट इज आल्सो एन अप्रोच। इनफैक्ट देयर आर, वी कैन एटलीस्ट फाइंड 10 to 15 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द सेम कोड। मैम सर, मैं ट्राई कर रहा था ये इफ कंडीशन मैम प्रांजलि में। हाँ, so we will not take questions on a topic जो हमने नहीं लिया है। what that does to a group is, क्योंकि बाकी लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? अभी हम कंडीशनल्स की बात ही नहीं करेंगे। इसमें कंडीशनल्स भी कर सकते हो आप,
बहुत सारी चीजें कर सकते हो. नहीं, मेरी क्वेरी एक ही थी कि आई कुड नॉट फाइंड द रिलेटिव कंडीशन देयर, दैट इज द पॉइंट ओनली. You will find it, sir. You can definitely try it. It is there and you should. आप खुद से बिल्कुल try करते रहें उसको, right? So this was the last task जिसको आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं. In fact, किसी का एक तरीके से हो सकता है, वो दूसरे तरीके से try कर सकता है. We have also given you the task for the next week. I hope that task is clear. What Pranjali can also do is share उसका screenshot और screen recording of that. तो उस चीज को आप लोग खुद से कोड करके यू कैन शेयर दैट. राइट, परफेक्ट. सो जैसे कि 3 पॉइंट्स में यहाँ पर क्लोजिंग करना चाहूंगी. वन इज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक हम खुद बना रहे हैं और हम अपने आप को पुश करें सोचने के लिए कि वो हम बच्चों को किस तरीके से समझाने वाले हैं, बच्चों तक हम वो किस तरीके से ले जा रहे हैं. दूसरा, हम लोग डेफिनेटली आप सभी के बहुत क्रिएटिव अमेजिंग आइडियाज हैं. आप अलग अलग चीजों से ट्राई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स लगा के. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे, जो हमने यहाँ पर आज एक्सप्लोर किया है और पिछली क्लास में एक्सप्लोर किया है, सीक्वेंसिंग की कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लोर की, लूप्स एक्सप्लोर की, वो दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम कितना क्रिएटिव हो सकते हैं जो चीज हमें टास्क असाइन किया है उसके लिए. फर्स्ट वी विल डू दैट. उसके बाद प्लीज यू आर फ्री टू एक्सप्लोर एंड यू नो एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स. एंड एट द सेम टाइम आप किस तरीके से उसको बच्चों को समझाएंगे, दैट इज समथिंग वी वुड डेफिनेटली वुड वांट टू सी. एंड आप जब अगली क्लास बच्चों के साथ यही चीज को अपने बच्चों के साथ ले जा रहे हैं, प्लीज हमें भी इनवाइट करिए उस क्लास में. वी वुड बी हैप्पी टू जॉइन एंड सी हाउ द लर्निंग हैपनिंग इन द क्लासरूम. Thank you, Pranjali ma'am. I think it's time for attendance. Over to you, Manbir. Thank you, Shay. Actually, link is live for attendance. और एक मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ग्रुप में मैंने शेयर किया है, उसमें सभी लिंक्स दिए हुए हैं. सो आपको ज्वाइनिंग भी हर एक सेशन वहीं से करना है, उसी लिंक से. और अटेंडेंस के लिए ये लिंक जो है, दिस इज लाइव फॉर ओनली 5 मिनट्स. और उसके बाद अगर आपको प्रीवियस आपके सेशंस जो हमारे हुए हैं यहाँ पे, वो रिकॉर्डेड सेशन अगर आपको देखने हैं तो उसका लिंक भी सबसे डाउन दिया हुआ है. वहाँ पे जाके आप वो लिंक जो है अपने ओल्ड जो सेशंस हैं वो हम देख सकते हैं सारे. और बीच में एक लिंक है अपना फीडबैक का भी उसमें है, और अटेंडेंस का जो कंबाइंड लिंक है. आप अपने अटेंडेंस मार्क करने के बाद एंड में अपना फीडबैक भी सबमिट करेंगे. थैंक यू. Thank you so much, Manbir ji. So please go to the link and fill in the attendance and the details, and do share your task on the next group. अभी तक 475 total sign-ups हुए हैं. तो we hope कि आप जल्दी से अपने groups बनाएं and get more and more students, और जल्द से जल्द ये हम बच्चों तक आगे पहुंचाएं. So with that, thank you so much. And we will see you next week again. Thank you. Thank you.